Right. Well, today is the 14th of November, and today is the World Diabetes Day. We're not here to celebrate the World Diabetes Day, but here we have congregated from the Mission Hospital in Durgapur. I am Dr. Satyajit Bose, the chairman and the senior cardiac surgeon from the Mission Hospital, Durgapur. When with me, we have Dr. Amurtha Shankar Choudhury, who is the senior endocrine consultant in our hospital. And he spent years treating patients with diabetes. And with us, we also have Dr. Rajan, who has spent a long time in the south of India treating diabetic patients, and he's joined us for a considerable number of years to treat diabetic and other endocrine disorder patients. And as I said when I started, that we are not here to celebrate, but we are here to kind of create an awareness among diabetic patients. So, and we are here to create an awareness so that we can diagnose more and more people who die of diabetes undiagnosed, especially in the middle income group and also in the lower socioeconomic strata. So this year, the thing is the access to the theme is the access to diabetic care. If not now, then when? And as you all know, that today is the 100th year of discovery of insulin, and this day has been commemorated to remember Sir Frederick Banting, who discovered insulin, and today is his birthday. So with these very few words, I must remind you that every year we lose 1.5 million patients dying out of diabetes alone in this world. And we are here to create an awareness so that we don't fall prey to this severe pandemic to an extent that diabetes, India is the diabetic capital of the world, and following which is also now emerging and already emerged as the heart attack capital of the world. So well, let us initiate our discussion. And the first question is directed to Dr. Amurtha Shankar Choudhury, is that diabetes now has invaded and pervaded every household in India now. How and what is the severity of this pandemic of diabetes as it stands today? Dr. Amurtha. Thank you, sir, and a warm good afternoon to all those who have joined for this FP Live. I thank Dr. Bose, sir, for this initiative of public awareness program. So as we all know, we are now for the past 2 years, we have been dealing with COVID-19 pandemic. And thanks to the vaccination and other safety strategies, we've been able to bring down the curve. We have been able to control this COVID-19 to some extent. But one such pandemic for which probably we are dealing with quite some years is now diabetes. Worldwide, there are more than 400 million diabetic population in the world. And the important, or what I would say, the cause of concern is that around 50% of diabetic patients are still remain undiagnosed. They do not even know that they are diabetic. And it poses a greater threat in these individuals if you consider the long-term complications of diabetes. India alone has around 77 million diabetic populations, and India is just second to China. So this pandemic is getting beyond our control. It's growing day by day. The figures have almost doubled since the 1980s. And it's time for us, for everyone, to do something so that we can bring down this pandemic. So please unmute yourself. So kindly unmute yourself. There is another question that comes into my mind as to what do you think is the reason for this pandemic? Dr. Rajan, can you please tell us, why do you think that, when 20 years ago or 30 years ago, or maybe when I was a young kid, I never saw so many diabetic patients around me. But why do you think there's a sudden surge? Today we're talking about the corona pandemic, we're talking about so many other things. What do you think is the reason for this pandemic in diabetes? Dr. Sir, you are absolutely right. Maybe I will say in last half a decade, in last
50 years, we have seen a sudden surge in the patient with diabetes. And mostly as diabetes, this is a partly it is a lifestyle disease also. The sudden change in our day-to-day behavior, day-to-day lifestyle, that might be the major reasons behind this rise of diabetic patient. Our change in day-to-day sedentary habits, mostly we are now in the sedentary habits and we hardly do exercise in our day-to-day life. We take excess of food than what we need in day-to-day life. In that, Dr. Amartya was telling in the COVID also, you see in the most of the working class, they are doing work from home. And whenever you are going to work, you are just even not for the purpose of working, but for going to work. In the office also, we do work. But what happens now in during COVID also, most of the people they are doing work from their home, one sitting in one place from day to night, not even moving. So these are the part of our lifestyle. COVID came just 2 years back. Before that also, we are mostly now getting habituated in sedentary lifestyles. Another thing is the excess of food and the type of food what we are now taking in last 2 to 3 decades, which are more of high glycemic index food, the junk food, that carbonated sodas, that so-called soft drinks. These are not good for our health. Rather, the traditional food we are now forgetting. We are taking less amount of food. We are not taking the same food what our ancestor used to take. We are not doing the same hard work, physical exercise that our ancestor used to do. So these are the changes that might be leading to this rise of cases in recent years, sir. Essentially, as I was going through some of the history, is that essentially human beings, I mean, the Stone Ages and whatever, they were all doing nomads. They used to walk miles and miles for their food. And that is what human beings were made about. But now, as you rightly said, that we are mostly sedentary, sitting in front of computers, doing their work, and obviously a lot of junk food that has invaded our eating system that is primarily responsible for whatever we're doing now. So now the next question to you is, what are the variants of diabetes that you see, that you encounter mostly in your practice, Dr. Yeah, so mostly whenever we are speaking about diabetes, we speak mostly about type 2 diabetes because it comprises almost 90% of our diabetic population. But the common variants we usually come across, other than type 2 diabetes, is the type 1 diabetes. I really want to mention about type 1 diabetes. This is the diabetes which usually we come across in children, but even adults can have type 1 diabetes. In this variant of diabetes, the patient is totally insulin deficient. The insulin secreting cells are destroyed. The patient needs insulin for survival. Without insulin, the patient cannot live beyond a few days. This can be sometimes diagnosed when the patient lands up in the emergency with vomiting, pain, abdomen. Patient has become unconscious. There is increased acid or ketone in the blood or urine, and patient needs emergency care. But the good thing is that these are some life-threatening emergencies. Quick and prompt treatment can easily save a person's life if the person reaches the healthcare in the appropriate time. So most important thing to know about type 1 diabetes is that as of now, as of today, insulin is the only treatment. You cannot stop insulin at any cost. The other variety of diabetes which sometimes we come across now, the prevalence is again increasing last few years or so, is gestational diabetes, a type of diabetes which we see only in pregnant women. It may not be evident in the first few weeks of pregnancy, but as on the pregnancy advances, we do the blood glucose monitoring. The gynecologist does that, advises blood tests at regular intervals, and we see that these pregnant women has a higher blood glucose level. In these women, the normal cutoff which we have for diabetes in normal patients is not true for pregnant women. We have a more stricter control. Your doctor will advise you if you ever have if you come across such a situation. We need more stricter control in diabetic patients because any worsening of blood glucose during pregnancy can have a bad outcome. Other variants of diabetes, we actually come very rarely. There are genetic variants. Then we can have a pancreatic diabetes, patient who has developed pancreatitis. The pancreas, which secretes insulin, is now damaged. Patient do not have enough insulin in the body. We know that insulin is a hormone which controls blood glucose.
So these again patients might need insulin therapy for controlling blood glucose. These are the usual variants we actually come to see. But most importantly, whenever you speak about diabetes, we never speak about lifestyle changes, diet changes. We actually speak about type 2 diabetes. Thank you very much. What the next question that I want to ask you, Dr. Rajan, is that do all people have equal risk of diabetes? Or the specific population should be extra careful? No, sir, not all the people have the equal risk for diabetes. Definitely, the patient who have a strong family history of diabetes in their close relatives like parents, grandparents, those who are more obese, those who are more in the sedentary lifestyle, those who have metabolic components of metabolic syndrome like dyslipidemia, hypertension, they are the more risk for diabetes. And another thing, as Dr. Amartya has mentioned, a patient who has a past history of, like a female patient who has a past history of gestational diabetes mellitus, they in future have a more risk for developing type 2 diabetes in particular. So these type of patients, they should be more careful, not only for the detection of the early diabetes, but also they should try to prevent their development or to delay the diabetes in this, because they are at more risk of diabetes than the other people. On a lighter note, I must tell everybody that I'm a diabetic patient. I mean, not a patient, a patient having person having diabetes. I don't consider myself a patient. That's the mindset. For the last 14 or 15 years, and these two doctors have been treating me ever since. Yes, diabetes does decrease your overall lifespan by maybe 2 years or less. किंतु diabetes का जो चिकित्सा है वो ठीक से करना पड़े. This is, I'm little speaking in Hindi for people who only talk in Hindi, for our patients and followers in Facebook who would only speak in Hindi. हाँ, ये diabetes कोई ऐसा रोग नहीं है जिससे आप एकदम मर जाओगे. इसको कंट्रोल करने से आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाओ. Now the other thing is that yes, as correctly stated by you, there is a huge population who in the middle and lower socioeconomic group who are undiagnosed. What are the strategies that we doctors all over the country should embark upon to diagnose them and pick them in the right way, Dr. Amartya? Thank you, sir. Should I shift to Hindi for our Hindi-speaking audience, or? I mean, a little bit interspersed with English and Hindi. So Okay, fine. Rightly pointed out, sir, because as Dr. Iyer, we have already discussed that we have a huge population who still remain undiagnosed. And the cause of concern again is that these undiagnosed population and the rising number of cases are in middle income, lower income group, where access to healthcare, access to diabetes care is still less compared to the developed nations. So now, if we cannot go on screening everybody, सबका blood test नहीं कर सकते हैं. The health budget won't support this. लेकिन Dr. Rajan has rightly pointed out some of the risk factors जिनको ये type 2 diabetes जो बीमारी हो सकती है, type 2 diabetes, इन risk factors जो है, जैसे वजन बढ़ना, blood pressure, high cholesterol, जिसके परिवार में किसी को diabetes है, these sort of people, these kind of people at least should go for an early screening tests. Then to know whether, क्योंकि diabetes का लक्षण जो है, diabetes का लक्षण सबको नहीं भी हो सकते हैं. Diabetes एक ऐसी बीमारी है जिसका लक्षण कुछ दिन बाद शायद आपको महसूस आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन जैसे diabetes आपको हो चुका है, बिना blood test के आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको diabetes है. जितना पहले आपको पता चल जाए कि आपको diabetes हुआ है, जितना जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, उतना ही आपका ऑर्गन्स जो डायबिटीज से खराब हो सकते हैं, जैसे किडनी, जैसे हार्ट, जैसे आंख, जैसे नस, ये ऑर्गन्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो स्क्रीनिंग टेस्ट स्पेशली इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स should be carried out, or at least hospitals should carry out some of the preventive health checks to diagnose these patients early so that we can treat them and manage them early and prevent the complications. Thank you very much. I just got distracted by a call. So, Dr. Rajan, I would just I'd like to ask you, suppose I'm a sadharan Vyakti, I don't know anything, I'm not a doctor, but कौन सा symptoms होने से would you think that I would think that I might have diabetes? I'll tell you how I got my diabetes, and notice that, I was passing urine, going to the washroom every now and then. And when I looked down, I saw that there was a little frothy kind of urine that I was passing.
that made me think, am I getting diabetes? So, but these kind of thought process may not enter the minds of the unsuspecting common man. So, Dr. Rajan, can you please tell us as to how one will feel that I've got diabetes? Because nowadays there are many people who got diabetes with no family history of diabetes. So, how will they even suspect that something has ever happened? सबसे पहले मतलब मोस्ट कॉमनली जो होता है, जो मतलब जो जिनको ज्यादा शुगर रहता है, शुगर बढ़ जाता है, उनके लिए सबसे कॉमनली जो सिम्टम हम लोग देखते हैं कि उनका वजन घटना। आप नहीं चाह रहे फिर से आपको वजन घट जा रहा है, आपको यूरिन बहुत ज्यादा हो रहा है, दिन में बहुत ज्यादा टाइम आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, पानी का प्यास बहुत बढ़ गया है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स वी सी फॉर ए क्लासिकल डायबिटिक पेशेंट। इसके अलावा भी मान लीजिए कोई छोटा छोटा सिम्टम्स हो, जैसे हाथ पैर जलना, वो भी कभी कभी डायबिटीज का साइन होता है। आपको कोई भी घाव हो रहा है, ये घाव अच्छी तरह से सही नहीं हो रहा है, एक एक ही घाव बहुत दिन रह जा रहा है, ये आपका डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। आपका वजन बहुत ज्यादा है, वजन इतना ज्यादा है कि गले के पीछे कोई काला काला दाग आ रहा है, दीज आर ऑल्सो सर्टेन साइंस को आपको डायबिटीज हो सकता है। तो दीज आर द साइंस जो आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर, एक बार आप शुगर चेक जरूर कीजिए। कोई कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई भी सिम्टम नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो रूटीन चांस कोई टेस्ट करने गया, उसमें डायबिटीज पकड़ा गया। बहुत सारा दोस्तों को हमने देखा है कि दुर्गापुर में बुला लिया कि भाई एक एग्जीक्यूटिव टेस्ट कर लो बिकॉज वी आर गेटिंग ओल्डर, एंड देन सडनली ब्लड शुगर 400। बहुत सारे दोस्त को मैंने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड ऑल दैट वी हैव डायग्नोस्ड बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक पैकेज दैट वी आर राइट नाउ डूइंग। And I must tell all my followers and all our followers from the Mission Hospital that we are having a special diabetic screening package in our hospital, and also for patients who already have diabetes, to understand how their control is, and at a very lucrative age. And we are also giving a particular discount for this present diabetic week, and all of you can avail the facilities. But again, I'll come back to our thing that this is a question that needs to be addressed and needs to be known. Does diabetic people have a preponderance of having heart attack? Diabetic patient को heart attack होने के chances है कि नहीं? ये सवाल का जवाब मैं खुद दे देता हूँ। और yes, मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि जितने भी हम लोग कार्डियक सर्जन्स हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, सारे जितने हार्ट के डॉक्टर्स हैं जो ट्रीट कार्डियक पेशेंट्स and by angioplasty or bypass surgery or whatever, 70 to 80% of them are actually diabetes. And और एक है कि diabetes में जो धमनियां हैं, जो arteries है, if you look at the arteries of a person who's non-diabetic, they get blocked in one place. But if it is a diabetic patient, then most of the arteries will be diseased all throughout the length of the artery. So this is called diffuse disease, and this is a situation which they cannot treat with angioplasty. Even it becomes difficulty during cardiac surgery also. Patients may have to undergo multiple endarterectomies, and yes, we do all of that, but it becomes a difficult situation to tackle. So yes, diabetic patients will have a very high preponderance. The exact calculations our diabetic friends, our endocrine consultants can give you. Can you please enlighten us on this? What percentage of diabetic patients land up with heart attacks and cardiac related symptoms? Sir, according to the data, like almost among all the diabetic patients, 65% of the patient die because of any of the cardiovascular disease. It compromises not only from the heart disease, of the other arterial disease, including the brain stroke. These are also disease of the arteries. So ऐसा नहीं है कि most of the diabetic patient, diabetic खुद से कुछ होने का चांस, खराब कुछ होने से चांस भी ज्यादा है, इससे अदर ऑर्गन फेलियर जो होता है, आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका आंख, इससे प्रॉब्लम बाद में ज्यादा होने वाला है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिनको डेथ होता है डायबिटीज की वजह से बिकॉज ऑफ द कार्डियक इशू, हार्ट के प्रॉब्लम के लिए। So therefore, diabetes affects not the large arteries of the body like the aorta and all that, but they affect small and medium sized arteries. इसके वजह से what they have is gangrene of the feet,
they have problems in the eye, they have problems in the brain, they have problems in the kidney, and so on and so forth. So I talked about the preponderance or the incidences of heart attacks in people persons suffering from diabetes. Dr. Chaudhary, can you please tell us what are the other complications that the diabetic patients might consider while, in the course of their disease, in the natural history of the disease? Like we talked about heart, what about kidney? What about gangrene? What about brain strokes? What about eye problems? So you please talk to us about the kidney and the gangrene bit, and Dr. Rajan can talk to us about the brain and the retina. Yes, sir. If you look, हम लोग डायबिटीज जो है, we treat डायबिटीज क्यों? कि हम लोग डायबिटीज इसीलिए डायबिटीज एक मरीज को दवाई देते हैं कि उनका शुगर कंट्रोल रहे ताकि उनको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो डायबिटीज 200 250 लेके बहुत लोग घूमते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है, नॉर्मल काम काज करते हैं, नॉर्मल ऑफिस काम करते हैं, खाना पीना भी नॉर्मल रहता है, कोई सिम्टम्स नहीं है। लेकिन हम लोग डायबिटीज का दवाई उन्हें इसीलिए देते हैं क्योंकि हमें ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। सो डायबिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट अटैक तो डॉक्टर जरबोस ऑलरेडी हैज डिस्कस्ड इन डिटेल्स। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है किडनी फेलियर। मैं एक चीज ये किडनी फेलियर के बारे में सबको ये आई वांट टू कन्वे टू ऑल माय व्यूअर्स से डायबिटीज का दवाई से मत डरिए। हमें एक मिसकंसेप्शन है, हम लोग कम एज से या बहुत अर्ली एज से दवाई नहीं खाएंगे, इधर का डिफरेंट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स या कुछ करके अवॉइड करेंगे दवाई क्योंकि दवाई नुकसान पहुंचाएगा। दवाई का सब दवाई का ही थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, लेकिन डायबिटीज या शुगर, हाई शुगर का जो साइड इफेक्ट्स है लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड, वो दवाई के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। सो दवाई आपको अगर लेना है ठीक टाइम पे लीजिए, लॉन्ग टर्म दवाई से बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, अगर किडनी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, किडनी अगर इफेक्ट हो गया डायबिटीज से, कुछ दवाई से हम लोग उसको स्टेबल रख सकते हैं लेकिन नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। किडनी जिसका खराब हो चुका है, उनका ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज डोज शायद अगर कम करना पड़े, या कभी कभार डायबिटीज दवाई जो हानि कर सकता है किडनी को, उसको बंद भी करना पड़ सकता है, उसको इंसुलिन का जरूरत हो सकता है। तो चाहे कि ऐसा सिचुएशन ना आए, इसीलिए हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम डायबिटीज को पहले से ही इसको डायग्नोसिस करें और अच्छा इसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल करके रखें। दूसरा ये एक बात डॉक्टर साहब बोले हैं कि और एक कॉम्प्लिकेशन है गैंग्रीन। दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो हम लोग कभी कभार नेग्लेक्ट करते हैं। हमारा पैर का जो है डायबिटिक फुट, वी शुड ऑलवेज अगेन स्ट्राइव टू टेक प्रॉपर केयर। हमें अपना पैर का बहुत अच्छा केयर लेना चाहिए। डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग में डायबिटीज नस इफेक्ट करता है, डायबिटीज का ब्लड वेसल्स इफेक्ट होता है, जिससे कि पैर का सेंसेशन, पैर में दर्द हो सकता है, जैसे 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 चुभना, जैसे निडल, पिन से निडल सेंसेशन होता है। कोई ऐसे लगता है कि आप रुई पे चल रहे हो, सेंसेशन कम हो गया है। तो ये सेंसेशन कम होने की वजह से क्या होता है, कभी कभार छोटी मोटी चोट जो आपको पैर में लगती है, आप उसे नेग्लेक्ट करते हो, वो चोट बड़ा हो जाता है, अल्सर होता है, अल्सर इन्फेक्ट हो जाता है। अगर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम है, उसको शायद गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन अगर हो जाए तो उस जगह को ठीक करना नामुमकिन है। तब वो जगह को हम डॉक्टर्स को काटना पड़ता है, जिसे एम्पुटेशन कहते हैं। एम्पुटेशन एक बहुत एक इमोशनल डिसीजन होता है, बोथ फॉर द डॉक्टर्स एंड द फैमिली, व्हिच वी वांट टू अवॉइड। तो ये सब स्थितियां जैसे डेवलप ना हो, दिस आर वेरी अनफॉर्चुनेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। एक डेटा देखा गया है कि रोड एक्सीडेंट के बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्पुटेशन, नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन, इज डायबिटीज। सो ये डायबिटीज इसीलिए हम लोग अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो खराब बीमारी का जो कॉम्प्लिकेशंस है हमें देखना ना पड़े। सर। Yes, so Dr. Rajan, please unmute yourself and start the discussion about the eye problems, the retina issues, how frequently one should have eye checkups and all that, and then I'll come to the preventive things that we think that's the best method to go around. आँख का जैसे सर ने बोला कि हर डायबिटिक पेशेंट को एटलीस्ट साल में एक बार आँख का रेटिना का चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये बेसिकली डायबिटीज हर जगह का, शरीर का हर जगह का ब्लड वेसल्स को पकड़ता है। तो आँख का भी ब्लड वेसल्स को डायबिटीज पकड़ता है और रेटिना में चेंजेस आते हैं।
और इसमें बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि रेटिना में ज्यादा चेंज आने से पहले या हेमरेज, आंख के अंदर हेमरेज होने से पहले आप उसको पकड़ ले। मेनी ऑफ द जब हम लोग कोई डायबिटीज पेशेंट को ओपीडी में बोलता हूँ कि आप एक बार आंख चेकअप कीजिए, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो आंख में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छा मैं देख रहा हूँ, 1 साल पहले मुझको कैटरेक्ट सर्जरी हुआ है, 2 साल पहले कैटरेक्ट सर्जरी हुआ है, अभी मुझको डायबिटिक का आंख चेकअप क्यों जरूरी है? क्योंकि इसलिए जरूरी है कि जब तक ये प्रॉब्लम आपको रेटिना का प्रॉब्लम माइल्ड रहेगा, कम रहेगा, तब भी आपको कुछ सिम्टम्स नहीं होगा। एकदम खराब होने से थोड़ी दिन पहले तक भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा आपका कम है, कुछ भी नहीं है, या बहुत ज्यादा होने वाला। और एक बार अगर बहुत खराब कॉम्प्लिकेशन हो गया तब ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। अगर माइल्ड डिजीज में आप आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे, उस टाइम में आपका रेटिना का स्क्रीनिंग होगा, तो आपको फ्यूचर में आंख का ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होने का चांस बहुत कम रहता है, हम लोग थोड़ा उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एटलीस्ट साल में एक बार आंख का जांच करना बहुत बहुत जरूरी है। Thank you very much. And so therefore, and for somebody who's already been diagnosed with diabetes, so what is the frequency at which one should do the tests for diabetes, and also HbA1c? Many patients that I encounter in my daily practice say, what is HbA1c? What do you do with that? So is it a edible item or what? So therefore, प्लीज टेल अस कि ये कितने दिन बाद में आपको डायबिटीज के लिए टेस्ट करना चाहिए, और HbA1c कितना रखना चाहिए कि उससे पता चले कि हमारा डायबिटीज अच्छी कंट्रोल में है कि इट इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली। सर एक्चुअली देखिए, ब्लड ग्लूकोज हमारा जब ट्रीटमेंट करते हैं, सो मेन मोटो और मेन ऑब्जेक्टिव है इनिशियली वेदर शुगर कंट्रोल हो रहा है। तो शुगर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं पता है, होता है 2-3 टेस्ट है। एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर जो खाली पेट है, एक टीपी ब्लड शुगर जो खाने के 2 घंटे बाद यूजुअली चेक करते हैं, एंड तीसरी है HbA1c। HbA1c हमें 3 महीने लास्ट 3 मंथ्स का शुगर का एवरेज एक आइडिया देता है, जिससे हम डोज अगर मुझे चेंज करना है, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल है कि नहीं, वो मुझे एक इंडिकेशन देता है। और बॉडी और हमारा जो शरीर में जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कुछ होने वाले हैं कि नहीं, हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो HbA1c एटलीस्ट 3 महीने में एक बार जरूर कराना चाहिए। HbA1c जैसे मान लीजिए आज आपका HbA1c इज कंट्रोल, जैसे 6.8% है या 6.6% है, आपका फास्टिंग शुगर आया 110, 108, लेकिन आपने उस दिन डाइट में कुछ ज्यादा खा ली, जैसे एक नॉर्मल 2 रोटी खाता है, उस दिन 3 पराठा खा ली, शुगर आ गया 210 pp। सो अगर हम लोग सिर्फ फास्टिंग pp करते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं होगा कि उस दिन का ही शुगर बढ़ा हुआ है या पहले से ही शुगर बढ़ा हुआ है। हम लोग वो रिपोर्ट देख के शायद डायबिटीज का दवाई का डोज बढ़ा दे, घर जाके जब नॉर्मल डाइट खाना शुरू करें तब शुगर सडनली बहुत लो हो सकता है। सो दिस कैन बी अ फॉलोअप। ये HbA1c पता करने से और डाइट का डिटेल हिस्ट्री लेने से पता चलेगा, ओ ये तो सिर्फ एक ही दिन शायद इतना शुगर बढ़ा था, नॉर्मली उसका शुगर ठीक रहता है, सो हमें डायबिटीज का दवाई का डोज बढ़ाना नहीं है। दूसरी बात है अनकंट्रोल एज, जब HbA1c बहुत ज्यादा है, 8% है, 9% है, ये भी एक हमें आइडिया देती है कि कितना डोज बढ़ाना है। दूसरी बात है ये हमें प्रेडिक्ट करेगी कि हमारा ये लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अपना बात कर रहे हैं उसका चांसेस कितना हाई है। सो अदर देन कंट्रोलिंग फास्टिंग एंड PP, a good HbA1c less than 7 and young patients less than 6.5, even less than 6% अगर हम मेंटेन कर सकते हैं, then we can be pretty sure that हम लोग almost मैक्सिमम डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। Thank you, doctor. I mean, there's another question which has come from one of the audiences. This question has come from Mitul Bhattacharya Chatterjee, and since you guys are endocrine consultants, so she asked the question: is diabetes any way related to thyroid, Dr. Rajan? Directly, diabetes is not related to thyroid, but in type 1 diabetes, that is a part of the autoimmune diseases, they have a more chance of autoimmune thyroid disorders. और दूसरा हम लोग और भी एक चीज देखते हैं, दिस ओबेसिटी अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी रहता है, इट कैन अ लिटिल बिट इंक्रीज TSH लेवल, तो उसके लिए कभी कभी हम लोग को थायराइड का दवा जरूरत नहीं होता है, rather ओबेसिटी मतलब वेट कम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। So the moment you control the body weight, insulin in the mild TSH, it will get controlled. So and
This question of Bilal Mia, I'm going to come back to you very soon. But prior to that, this is a very, very important topic that we need to understand is what should be. See, I'm a diabetic, so I am constantly, and I'm quite a greedy guy. You know what? You know me. So essentially, what happens is that I cannot take rice. I cannot take roti. I cannot take sweets. I cannot take a cake. I cannot take anything else. So I cannot take potatoes. So all I can take is, I think, vegetables, soups, and a bit of fish and a bit of white meat. And please tell us, doctor, that what should be, I'll come to Dr. Amurtha for this, as to what should be the ideal diet in a diabetic patient. And you can differentiate between a young, middle-aged or older guy, or whichever way you like to say. But I think it's a very, very important question. And later on, the next question to you, Dr. Rajan, would be, what kind of oil should a diabetic patient prefer to use? Over to you, Dr. Amurtha Shankar Choudhury. Yeah, thank you, sir. Again, the most important strategy of management of type 2 diabetes, we should not forget, is diet and lifestyle. दवाई फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं है. अगर किसी को डायबिटीज हुआ है, बहुत लोग दवाई खाना नहीं चाहते हैं, एकदम सही बात है. जिसका डायबिटीज बॉर्डर लाइन में है, जस्ट रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, जिसका वजन बहुत ज्यादा है, वी कैन समटाइम्स एटलीस्ट फॉर 3 to 4 months हम लोग डाइट एक्सरसाइज से ट्राई कर सकते हैं. एक एक्सरसाइज पैटर्न ले लीजिए और एक डाइट प्लान हम लोग अगर शुरू करते हैं जो हेल्दी डाइट है, जो लेस इन कार्बोहाइड्रेट है, लेस इन ऑयल है, जिसपे फैट चिकनाई ज्यादा कम है, उसमें अगर हम मेंटेन कर सकते हैं तो डायबिटीज को थोड़ा नॉर्मल में भी ला सकते हैं बिना दवाई से. और इनफैक्ट सिर्फ जिसका रिसेंट डायबिटीज नहीं, जो डायबिटीज सिर्फ की बीमारी है, उनको पहले ये लाइफस्टाइल और ये डाइट ठीक करना चाहिए. उसके बाद जितना शुगर लेवल रह जाए उस हिसाब से दवाई. ऐसा नहीं कि दवाई का बहुत हाई डोज लेना है और साथ में कुछ भी खाए, ऐसा नहीं. हाँ, हमें टेस्टी खा तो सबको पसंद है, सबको लेना चाहिए. वंस इन अ वाइल वी शुड ऑलवेज एंजॉय अ गुड फूड, गुड मील. मीठा भी खा सकते हैं, फ्राइड फूड भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ सर, जरूर. अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल है, 10 दिन में एक बार आप अगर मीठा खाए भी, कोई आपका प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है. एज आई टॉक्ड अबाउट द HbA1c, हमें अगर 3 महीने का एवरेज शुगर अगर कंट्रोल में है, एक दिन शुगर अगर 140 नहीं, 180, 190, 200 भी हो जाए, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता. बट हाँ, जरूर ये रेगुलरली नहीं होना चाहिए. जब आज हम मीठा खा लिए, कल पराठा खा लिए, परसों आलू पराठा खा लिए, उसके नेक्स्ट दिन बिरयानी खा लिए, देन इट विल गो, सब कुछ बिगड़ जाएगा. तो वही चीज का ध्यान में रखना है कि बाकी दिनों में हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा कम हो. सुबह अगर नाश्ते में आप रोटी सब्जी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं. दलिया ओट्स में आप ऐसा सब्जी डालिए जो हरा सब्जी होता है, आलू, अरबी, या जैसे जमीन के नीचे जिसमें जो थोड़ा स्टार्ची फूड जो होता है वो थोड़ा अवॉइड कीजिए. जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स जितना भी है उसमें वो सब्जी डाल के बनाइए, तेल कम डालिए उसमें. जब भी थोड़ा देर बाद जैसे नाश्ता कर लिए, नाश्ते के 2-3 घंटे बाद थोड़ा फल खाइए, जिसमें जरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी थोड़ा कम होता है इमीडिएटली. जैसे सेब हो, अमरूद हो, मौसम्बी हो, नाशपाती हो, पका पपीता हो, ये सब फल आप खा सकते हैं 100 ग्राम. दोपहर में ऐसा नहीं कि आप चावल बिल्कुल नहीं खा सकते हैं. अगेन, जिसका शुगर ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, चावल एक टाइम तो जरूर खा सकते हैं, लेकिन चावल के साथ ये जरूर ऐड करना है कि सब्जी सलाद बहुत ज्यादा करके लीजिए. सब्जी कम तेल में बनाया हुआ, तला हुआ चीज अवॉइड कीजिए. जैसे बैंगन फ्राई करके मत लीजिए, बैंगन का सब्जी बना के खाइए. पटल फ्राई, जैसे फ्राई में तेल ज्यादा चला जाता है, वो भी शुगर को और कैलोरी इंटेक को बढ़ा देता है. घर पे बनाया हुआ दही खाइए, जैसे मलाई निकाल के दही बनाइए तो सो दैट फैट कंटेंट कम रहे. शाम का खाना में जैसे हम लोग कभी कभार मूली, चॉप, समोसा खा लेते हैं, खाइए या, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा. जैसे हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में एक दिन खाइए, वो टेस्ट के लिए ठीक है. बाकी दिनों में आप जैसे ड्राई चना हो या जैसे स्प्राउट्स हो, ये सब चीज में जैसा कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स, बहुत हैवी स्नैक्स नहीं होना चाहिए. रात को फिर से अगर रोटी सब्जी ज्यादा, दाल, ये सब करके खाना जैसे. लेकिन वही है, आपको चेंज करके खाना है. आप चिकन भी खा सकते हैं, लेकिन चिकन, मटन भी थोड़ा कम. मटन में थोड़ा फैट कंटेंट ज्यादा रहता है, जिसको जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, उनमें थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड. लेकिन चिकन अगर जैसे भी बनाते हैं, कम तेल में बनाना है. कोई भी खाना जैसे बनाते हैं, फ्राइड आइटम कम, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा कम, और उसके साथ एक्सरसाइज. ये अगर कॉम्बिनेशन रहे, थोड़ा खाना कभी कभार ज्यादा भी हो गया,
कोई पार्टी वार्टी में गए, जैसे आप महीने में 2 महीने में एक बार किसी इंस्टीट्यूट कोई आपका त्योहार है, कोई पार्टी है, कोई घूमने जा रहे हैं, तब थोड़ी ना आप इतना कंट्रोल करके रह सकते हैं। तो बाकी दिनों में अगर शुगर कंट्रोल अच्छा रहे, वो 2 महीना 3 महीने में वो ओकेशनली अगर तो एक दिन ज्यादा भी खा लिए, आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। डॉक्टर राजन, आप अगर कुछ ज्यादा कहना चाहें। रिगार्डिंग द ऑयल, क्या तेल आप यूज करेंगे, उससे भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट आप कितना अमाउंट ले रहे हैं। डेफिनेटली तेल में जो हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें ज्यादा रहते हैं, जैसे पिछले दिन हम लोग जो डालडा लेते थे वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला तेल, जैसे हम लोग नॉर्मली सरसों का तेल लेते हैं या सादा सनफ्लावर ऑयल लेते हैं, आप कोई भी तेल लीजिए बट उसका अमाउंट कम होना चाहिए। और इसको आपको कैसे पता चलेगा आपका अमाउंट सही है कि नहीं है। तो जो हम लोग बोलते हैं कि हर आदमी के लिए हर महीने में घर में रसोई में आधा लीटर तेल, मान लीजिए आपके घर में 4 आदमी का खाना बन रहा है तो घर में टोटल मंथली कंजम्पशन ऑफ 2 लीटर के अंदर आप ऑयल रखने की कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑयल कंजम्पशन कम हो जाएगा। उसके साथ जो बेक्ड फूड है, जैसे जहाँ पे ज्यादा ऑयल प्रोसेस्ड होता है, जैसे ये पैटीज या बाहर का जहाँ पे एक ही ऑयल बार करके यूज हो रहा है, दिस टाइप ऑफ ऑयल ये आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वेदर यू आर टेकिंग सरसों का तेल, सादा तेल, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू शुड टेक लेस अमाउंट, कम कम तेल में खाना बनाए। Well, this is another question that has come up. Is people keep on asking us, what is the role of ghee, butter, cheese? Can I take them? Personally, I think that ghee, because most of our Indian cooking is done at 280 to 300 degrees centigrade, and ghee, coconut oil, and cold pressed mustard oil actually do not get denatured when they are cooked at 380 degree up to 400 degrees centigrade also. So I feel that I tell most of my patients, yes, you can take a bit of ghee. What is your impression about ghee, Dr. Ward? Yes, sir. I think you'll be a better person to explain this way of view, because you have already I have heard many of your lectures where you've spoken about the intake of ghee in cardiac patients. So in moderate amount, as Dr. Rajan has already said, we don't want to use saturated fat in a very high. I mean, not say have loads of ghee, but you can cook your food in ghee. Yes, yes, definitely. Certainly better than white oil, because white oil gets denatured in 300 degrees centigrade or 100 degrees centigrade. Yeah. So that's it. Any other things would you like to add about diet as such? Another thing I'd like to mention, जो जिसने बोला है कि सलाड्स जितना ज्यादा हो सके, जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड सलाड्स जितना ज्यादा हो सके उस डाइट में, खीरा टमाटर मूली प्याज का सलाड आप डाइट में ज्यादा करके इंक्लूड कीजिए। एंड वो भी थोड़ा आपको पेट भी आपका भरेगा। जैसे आपका ऐसा लग रहा है कि 3 रोटी से पेट नहीं भरा, थोड़ा और 4-5 रोटी खा ले, अब 3 रोटी लीजिए, सब्जी ज्यादा करके लीजिए और सलाड ज्यादा लीजिए, अब पेट भी भरेगा और जैसे आपका शुगर कंट्रोल, जैसे कैलोरी इंटेक भी बहुत ज्यादा लीजिए। Well, doctor, there's another question that keeps on coming in our mind. Once insulin, always insulin. Is that right, Dr. Rajan? दिस इज नॉट राइट ऑलवेज। हम लोग को देखना पड़ेगा आपको इंसुलिन क्यों लग रहा है। अगर आपके ऐसा है कि आपका डायबिटीज बहुत दिन से है और आपको जो डायबिटीज है वो इसी वजह से हो रहा है कि आपके शरीर में और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, शरीर में और इंसुलिन कुछ बचा ही नहीं है, तब हम लोग को जो इंसुलिन देना पड़ता है, क्योंकि आपका डायबिटीज लाइफ लॉन्ग रहेगा, तब आपको इंसुलिन जो देना पड़ता है वो लाइफली आपको लाइफ लॉन्ग ही देना पड़ेगा। जैसे बच्चों का जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, तब भी उनका डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन एकदम बंद हो जाता है, तो उनको भी लाइफ लॉन्ग इंसुलिन चलेगा। लेकिन दूसरा कुछ टाइम है जब हम लोग पेशेंट को इंसुलिन देते हैं, जैसे आपको कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और कोई और भी कारण में कुछ अदर एक्यूट इलनेस हुआ है, इसके लिए आप हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिटेड है, और कोई दूसरा रोग है, आपके लीवर का कुछ बहुत बड़ा रोग हुआ है, किडनी का बहुत बड़ा रोग हुआ है, और इन प्रेग्नेंट पेशेंट ऑल्सो, इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट, अगर आपको जिसके लिए आपको जो प्राइमरी डिजीज है, जैसे ऑपरेशन जब हो गया, आपका जब ऑपरेशन हो गया, अगर आपका शुगर अच्छा है तो अगेन आपको बाद में हम लोग दवा में शिफ्ट कर देंगे। जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज जो डॉक्टर अमर तो भी डिस्कस किए, कोई भी डायबिटिक पेशेंट को मोस्टली जब प्रेगनेंसी में रहता है तो हम लोग इंसुलिन देते हैं, बट प्रेगनेंसी हो जाने के बाद अगर उनका डायबिटीज रह भी जाता है और उनको दवा से काम होता है तो फिर से हम लोग उनको दवा में
बैक कर, ऐसा नहीं है कि इंसुलिन आपने ले लिया और उसको सारा जीवन लेना है। अगर आपको अंडरलाइन डिजीज नहीं है और आपको घर खुद का इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, तो वी कैन अगेन स्टार्ट ओरल मेडिसिन। Another question is that, most of us who are diabetics, and you also advise that you must get your fasting sugar, you must get your postprandial blood sugar and your HbA1c sugars. ये कितना दिन बाद में you should be able to do these tests? अगर एक महीना बाद मैं जैसे 6 महीना बाद करता हूँ, तो what I do is I do the capillary blood sugar every day, 5 times a day, almost an obsessive compulsive disorder, just to see what I'm eating is right, what I'm doing is that. I think that is one end of the spectrum. But what do you think is that ideally a patient should do for daily measurement of sugar or weekly measurement of capillary sugar? What should be the ideal interval for doing such tests? Sir, basically, when we are advised diabetes treatment, हम जब दवाई लिखते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं कि फास्टिंग बीपी कंट्रोल हुआ कि नहीं। तो फास्टिंग बीपी हम लोग इनिशियली दवाई लिखने के बाद एवरी 2 to 3 वीक्स के बाद हम लोग एक बार फास्टिंग बीपी चेक करते हैं जो टैबलेट्स में है। फिर उसके बाद अगर देखते हैं कंट्रोल में है, फिर 1 महीना बाद बुलाते हैं, अगर उसमें भी कंट्रोल में है फिर 2 महीने का गैप बढ़ा सकते हैं। सो प्रीफरेबली महीने में एक बार, एवरी 3 to 4 वीक्स एक बार एटलीस्ट फास्टिंग बीपी मॉनिटरिंग पे रखना चाहिए। लेकिन जो लोग इंसुलिन पे है, सो उनका मॉनिटरिंग थोड़ा और फ्रिक्वेंट होना चाहिए। प्रीफरेबली जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको घर पे एक ग्लूकोमीटर डिवाइस, जो आप जैसे सर आप कहते हैं आप 4 बार 5 बार देखते हैं, एक ग्लूकोमीटर डिवाइस रहना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जैसे शुगर कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, लो शुगर भी बहुत खतरनाक हो सकता है। सो हमें वो डोज एडजस्टमेंट के लिए घर पे शुगर थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी में डेली या ऑल्टरनेट डेज या एटलीस्ट वंस इन 3 डेज आपको चेकिंग की जरूरत हो सकती है। एंड द थर्ड टेस्ट जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, HbA1c, 3 महीने में एक बार, टू सी वेदर देयर आर एनी फ्लक्चुएशन, जिसे हम ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं। जो वाइड फ्लक्चुएशन से HbA1c कंट्रोल नहीं होता है, तो हमें HbA1c कंट्रोल के लिए और थोड़ा बेटर मेडिसिन या और बेटर डाइट कंट्रोल करने की जरूरत है कि नहीं, वो थोड़ा आइडिया मिलता है। Well, there is a question from Bilal Mia, very, very relevant question. He says, good afternoon, sir. I have one question. How to manage a patient with severe hypoglycemia emergency at home? He mentions at home, if a patient is suddenly unconscious after getting insulin, which is a very relevant prashna. Mane, if I would translate that in Hindi, he says, अगर घर में जो पेशेंट को इंसुलिन मिल रहा है, उसको अगर यदि हठात अनकॉन्शियस बेहोश हो जाए और हम देखें कि उसको ब्लड शुगर चेक करके फिंगर प्रिक हाइपोग्लाइसीमिया और नहीं भी हो हाइपोग्लाइसीमिया, तो किस तरह से ये ट्रीटमेंट उन्हें इनिशिएट किया घर में एज अ होम रेमेडी? डॉक्टर राजन, आई थिंक यू परफेक्टली। सर, ये अगर माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया है, जब तक पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है तब तक तो हम लोग घर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तब अगर जब भी आपको सिम्टम्स आ रहा है, जो कॉमन सिम्टम्स है, थोड़ा पसीना छूट रहा है या बहुत पैल्पिटेशन हो रहा है, तो तुरंत आप शक्कर नहीं तो ग्लूकोज अराउंड 25 ग्राम्स, मतलब 4 चम्मच शक्कर नहीं तो 4 चम्मच ग्लूकोज देने के बाद उनको थोड़ा खाना दीजिए, एक मील दीजिए जिसमें थोड़ा शुगर उनको बढ़ेगा। बट प्रॉब्लम होता है अगर एक टाइम विंडो रहता है जब पेशेंट को सिम्टम्स है बट आप खाना लोगे तो शुगर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उस टाइम विंडो के अंदर अगर आप खाना नहीं लिया, शुगर नहीं लिया, ग्लूकोज नहीं लिया, तो शुगर और फॉल हो जाएगा और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस घर में हो गया तो सबसे पहले तुरंत उनको इमरजेंसी में लाइए। अनकॉन्शियस होने के बाद दैट इज इटसेल्फ अ सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया, दैट मीन पेशेंट नीड्स हेल्प। इसके अलावा एक इमरजेंसी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि मतलब जब पेशेंट खाना नहीं ले पा रहा है तो हमको ग्लूकोज बढ़ाने के लिए उनको इंजेक्शन देके बॉडी में ग्लूकोज देना पड़ेगा। तो आईवी एक्सेस जो हम लोग इंट्रावेनस देते हैं वो नॉर्मल पेशेंट को, नॉर्मल पीपल को घर में देने का चांस बहुत कम है, बिकॉज इट नीड्स एन एक्सपीरियंस हैंड टू डू एन आईवी लाइन। एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट रहता है जो एक ग्लूकागॉन इंजेक्शन दैट कैन बी गिवन इन आईएम, मतलब आप मसल में दे सकते हो, और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के बाद यू कैन गिव इन द आईएम इन वेरी सीवियर इमरजेंसी। बट इसका अवेलेबिलिटी इन इंडिया, नॉट एवरीवेयर द ग्लूकागॉन इंजेक्शन इज अवेलेबल। सो मेरी तरफ से बेस्ट इज प्रिवेंशन सर। जब भी कोई प्राइमरी सिम्टम्स आपको आ रहा है, आपको पसीना छूट रहा है, थोड़ा दिल में थोड़ा बेचैनी आ रहा है, दिल का धड़कन तेज हो रहा है, यू चेक द शुगर,
अगर शुगर चेक भी नहीं कर सकता तो घबराहट आ रहा है, घबराहट। घबराहट आ रहा है, 4 चम्मच शुगर नहीं तो ग्लूकोन डी देके खाना दे दीजिए। और उसके बाद अगर अनकॉन्शियस हो जाए तो कोई भी नजदीक का जो हॉस्पिटल, जो हेल्थ सेंटर जहां पे आप आईवी मतलब आप सलाह इंजेक्शन दे सकते हो वहां पे तुरंत ले जाइए। इसीलिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बहुत जैसे सर ने जैसे कहा है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जैसे आपका शुगर आपको पता चल रहा है कि पहले से ही थोड़ा कम हो रहा है, आप इंसुलिन डॉक्टर से आप सलाह लेके इंसुलिन का डोज थोड़ा पहले से ही कम कर दीजिए। और जैसे डॉक्टर राजन ने कहा है, एकदम से कोई अनकॉन्शियस होता नहीं है, आपको ये वार्निंग साइंस, वार्निंग सिम्टम्स हमेशा पहले ही मिल जाएंगे कि आपको पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, भूख लग रही है, तब इमीडिएटली आप उसका attention आपको जैसे appropriate। So yeah, and so we've already been talking for 45 minutes, and I think it's very relevant that we make it short and sweet. So we discussed many things about diabetes in children, diabetes in pregnancy, and the the diabetes type 2, which happens in most of the people. And we also talked about hypoglycemia. We talked about various complications. Now, there is one question that came to us when we were discussing in Bengali. One gentleman asked, how is stress related to diabetes? जी सर, एक्चुअली हम वो ये मानसिक अस्थिरता से डायबिटीज होता है कि नहीं? करेक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटलीस्ट हमारा अभी जो डे टू डे लाइफस्टाइल हम लोग जो लीड कर रहे हैं, एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, अब ये कोविड पेंडेमिक ही ले लीजिए, जैसे या तो फिर एक नॉर्मल जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्विस कर रहा है, या तो कोई प्राइवेट फार्म में काम कर रहा है, वर्क प्रेशर इतना बढ़ गया है, वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं। जैसे मेरा पेशेंट, आई हैव कम अक्रॉस पेशेंट, जो मैं एक्सरसाइज के बारे में बोलता हूँ, टाइमली डाइट के बारे में बोलता हूँ, बोलते डॉक्टर साहब मेरा टाइम ही नहीं है, मैं सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ, मुझे ऑफिस पहुंचना है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस है इतना मुझे, और वापस आते घर पहुंचते 9-10 बज जाते। मैं पूछा आप कब रात को कब खाते हैं और सोते कब है? तो वही बोलते, हाँ डॉक्टर साहब मेरा तो ये खाना का टाइमिंग भी नहीं है और सोने का टाइम सिर्फ 4-5 घंटा हो गया। दिस इज एक्चुअली वेरी बैड। हम लोग अभी लास्ट न्यूज में लास्ट फ्यू मंथ्स में देखे हैं, बहुत यंग एंड वेरी हेल्दी एक्टर्स का कुछ सडन डेथ्स हो गए हैं। ऑल दीज आर स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, जो हम थोड़ा लाइफस्टाइल, थोड़ा मॉडिफिकेशन, आपने अपने हेल्थ को थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। वर्क ऑलवेज इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस डेफिनेटली ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड शुगर भी बढ़ाता है। स्ट्रेस में हमारा कुछ स्ट्रेस इंक्रीजिंग स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं किसे, वो हार्मोन्स ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ा सकते हैं, और ये चीज लॉन्ग टर्म में लेके एक हार्ट अटैक का रिस्क भी इसका एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। सो स्ट्रेस रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल मेजर्स, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। Yes, I was coming to that. So how is yoga and meditation going to help you in control of diabetes? There are some naturalists who give it a lot of importance. I personally do the Surya Namaskar at least four days a week. That increases my heart rate to 120, 125, 130, and that I feel the stretching and all that increases my my physical, mental state of well-being. But when I do the meditation, my heart rate comes down to 60, 70, and I can feel my grade 2 also becoming warm. So there's a great deal of peripheral vasodilation. Now this is, I'm speaking out of my personal experience. What would Dr. Rajan comment on the role of yoga and meditation? I do the meditation, which is usually called the Yoga Nidra, which is sold by many nowadays new age spiritual gurus. That has got no relation to spirituality, but it is very, very nice as far as I'm concerned. So I'm concerned. So Dr. Rajan, can you please tell us? So definitely yoga as a part of exercise also, like it is not as a part of exercise and overall in de-stressing, and yoga has shown in many studies to have a better control of diabetes rather than those who are not doing. Like it is in scientific journals also, we have the published data like yoga as a part of exercise, as a part of de-stressing, it helps in better diabetes control than जो लोग को follow नहीं। तो definitely ये तो helpful है सर, वो as a part of exercise body का stress hormone कम करने के लिए, for your relaxation as a whole, as an overall holistic approach, it is going to help you.
And thank you very much. So, as medical professionals, Dr. Chaudhary and Dr. Rajan, I would ask you, this will be my last question. I'll give you 30 seconds each to you, is how can we help to control? I mean, we cannot do our bit, but what message do you want to give to people? Because I'm sure this video is going to be watched by many, many people. What is the message that you would like to give to people so that we can reduce the burden of diabetes in our society and, make this is a part of health economics, that if I've got patients of 27-year-old, HbA1c 14.5, heart attack, bypass surgery, and he becomes a scared man. He can't work hard. So his contribution to society comes down. So this is the entire part of health economics. So what is the message that you would like to give to people so that we can reduce this pandemic of diabetes? Dr. Amartya and then Dr. Yes, sir. So, as we have already discussed earlier also, and today we are doing this thanks to your initiative, thanks for sparing us from a time out of your busy schedule, we are doing this public awareness program. यही एक इम्पोर्टेंट चीज है, हमें दूर तक पहुंचना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए डायबिटीज क्या है। ये डायबिटीज बहुत लोग बहुत मामूली बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि जैसे बहुत सिम्टम्स नहीं होते इनिशियली, लोग आराम से चल रहे हैं, कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई इतना परेशानी नहीं हो रहा है। लेकिन हमें यही समझना है कि यही जो हाई शुगर अभी का जो प्रॉब्लम है, लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर 10 साल 15 साल बाद यही हार्ट अटैक का कारण बनेगा, यही स्ट्रोक का कारण बनेगा, यही किडनी फेलियर का कारण बनेगा। तो ये हमें एडुकेट करना, लोगों को समझाना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी शुड स्पेंड मोर टाइम विद आवर पेशेंट्स, काउंसल देम एंड एक्सप्लेन देम द नेचुरल कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज। जब आप अभी टाइमली ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब बीमारी होने का चांसेस मिनिमल है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस मिनिमल है। लॉन्ग टर्म में यही आपका इकोनॉमी, आपका पैसा, जैसे जो भी है, विल बी इकोनॉमिक बर्डन बन जाएगा अगर ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप किए। अभी आपका डायलिसिस ह्यूज कॉस्ट, फिनिश्ड। एट द सेम टाइम और एक इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रीनिंग। हमें पहले ये कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट जो हाई रिस्क पॉपुलेशन में, उनको ये स्क्रीनिंग करके आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इनका डायबिटीज है कि नहीं है। बहुत लोगों को पता नहीं चलता है डायबिटीज है, दे स्टिल अनअवेयर। इनका अगर पहले से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दवाई भी कम, मिनिमम खर्चे का दवाई, मेटफॉर्मिन कॉस्ट वेरी लेस, ये सब दवाई से शुगर बहुत दिन कंट्रोल रह सकता है अलॉन्ग विद डाइट एंड एक्सरसाइज। ये दो हमारे ओर से। तीसरी जो बात है वो पेशेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइमली जैसे डॉक्टर का सलाह ले, दवाई बंद ना करे डॉक्टर का बिना सलाह। डॉक्टर का दवाई, मैं बार बार दोबारा दोहराना चाहता हूं कि दवाई नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना डायबिटीज नुकसान पहुंचा सकती है। दवाई टाइमली ले, टेस्ट टाइमली कराए, डॉक्टर का सलाह लेके चले। डॉक्टर राजन। मैं और एक चीज बोलूँ तो बहुत सारा पेशेंट हम लोग देखते हैं, उनको पता है कि उनको शुगर है, लेकिन 2-3 साल वो लोग घर में सिर्फ देख रहा है कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा मत कीजिए। जब आपको पता है शुगर है, आप जितना जल्दी आएंगे, जितना जल्दी आपको करेक्टिव स्टेप ले पाएंगे, उतना जल्दी आपको शुगर कंट्रोल होगा। आप जितना देर करेंगे, उतना आपको अंदर ही अंदर डायबिटीज को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि आपको सिम्टम्स नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ऑर्गन का, हार्ट, किडनी, आईज, नर्व, उसका डैमेज होगा। तो आपको अगर पता है आपको शुगर है, अपने घर में टेस्ट किया है, तो जल्दी कोई भी डॉक्टर के पास जाके उनका इलाज स्टार्ट कीजिए। जितना जल्दी आप डायबिटीज का कंट्रोल करेंगे, उतना जल्दी ही आपको बाकी ऑर्गन डैमेज से प्रिवेंशन ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही है कि इससे डरिए मत। अगर आपको शुगर है, यू टेक द फिजिशियंस लीव, गो टू द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और आप उसका चिकित्सा स्टार्ट कीजिए। आप जितना लेट करेंगे, आपका प्रॉब्लम उतना ज्यादा होगा। Thank you very much, Dr. Amartya Shankar Chaudhary and Dr. Rajan. It's been a wonderful experience talking to you, and the pearls of wisdom that has come out of your, your advices to all people. I'm sure it's going to affect a lot of people. To summarize, please eat less, exercise more, reduce your body weight, maintain a proper BMI, and take your medicines regularly, and keep yourself mentally happy and be fine, and all the best to you. Thank you very much, and have a great weekend. Bye-bye. Thank you. Thank you.